हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आनंद तिवारी और स्वागत है आपका एटीसी क्लासेस में, यानी कि आनंद तिवारी क्लासेस में। आज मैं एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर फर्स्ट मैटर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ आप सबको। सो एंजॉय योर वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग माई न्यू वीडियोज़ एंड लेक्चर्स। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैटर। व्हाट इज़ मैटर? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, राइट। अब what is matter? Everything in the universe is made of a material which scientists have named matter. Everything in the universe which is made up of material is called as matter. We must have imagined, or we can visualize these things, that the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, animals, even a small drop of water or a particle of sand, etc., 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 things also is made up of matter. We can also look around these things, or the things which I have told you contain or occupy some space in somewhere and have mass. वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो भारी होते हैं. In a nutshell we can tell that matter, the things which occupy matter are, they have space and volume, or mass and volume. Now a little bit nice thing means very given in NCERT, I will tell to you. Early Indian philosophers classified matter. They classified matter in 5 elements. Means according to them, matter, everything in the world is made up of only these 5 elements. What are these 5 elements? These 5 elements are called as Panch Tattva. Panch Tattva. And what are these Panch Tattva? Let us see. The first Panch Tattva is air. The second Panch Tattva is earth. The third Panch Tattva is fire. The fourth Panch Tattva is sky. And the fifth and the last Panch Tattva, which is very important for our life, is water. According to Indian philosophers, all these Panch Tattvas, means all the matter, means whatever the thing is there in our world or in the universe, is made up of only 5 these elements: air, earth, fire, sky and water. Now let's see what next. Now we will see about what is there in these 5 Panch Tattvas, or wait a minute, I will tell you one more thing. What Indian philosophers told, or what they conveyed. They conveyed, or they, according to them, every non-living or living thing. May the thing be non-living or it may living or non-living. These two things are made up of these 5 elements. In modern day, modern scientists have evolved and they classified matter
on the basis of two properties, that are physical property and chemical property, chemical nature. So modern scientists classified matter in two properties: physical property and chemical nature. These two properties. This is the first one and this is the second one. Now, since early times, human beings have been trying to understand the surroundings. They are trying to understand what our surroundings says. So they have what they have means surrounded or gathered information. I will tell you. First, about the physical property or the physical nature of matter, we will learn about that. What is physical nature? Physical. First, we will see to this. First, we will see this. Now, for a long time ago, means physical nature of matter have been prevailed by two thoughts of school. According to the first school, the matter is like a continuous. Matter is, according to the first school, matter is continuous, like a block of wood, right? Block of wood. The other thought prevailed that matter was made up of sand-like particles, very tiny particles, sand-like particles. But let us perform an activity to decide the nature of matter. It is particulate or continuous? Let's see what it is. So, in order to answer whether matter is made by continuous or particulate, we need to perform this experiment. We should take a 100 ml बीकर. हमें एक 100 ml की बीकर लेनी. उसके बाद fill half the beaker with water and mark the level of water. See, we took the beaker. This marking systems are there. 50 ml water. भर लेना, right? 100 ml, right? हाफ का बीकर भर दिया. चलो हाफ ये है बस. हाफ भर दिया. After that, उसमें हमें we should dissolve some salt or sugar with the help of glass rod and stir it. अब इसमें सॉल्ट और शुगर डाल देना, फिर उसे ग्लास रॉड से मिक्स करना. सो डाल दिया, मिला भी दिया, राइट? मिला दिया. Now, do you observe any change in water level?
What do you think? What would have happened to salt? Where does it disappear? Or does the level of the water change? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. ये यहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होता, तो यही प्रूव है. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between matter. अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं इस पिक्चर को, तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा. अब वाटर के बीच में स्पेसेस है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के बीच में स्पेसेस, राइट, ऐसे स्पेसेस है, राइट. अब हम जब इसमें when we dissolve salt or sugar in it, this is the 100 ml. When we dissolve salt or sugar, the tiny minute molecules of salt and sugar, that is, if the salt or sugar is made up of particle-like matter, if the matter of salt and sugar is made of particles, it will settle around these spaces and the level of water does not increases, right? So from this we can conclude that matter is made up of sand-like particles. So let's continue. Now we can perform another activity to answer a question that how small are these particles of matter. ये मैटर के जो पार्टिकल्स है कितने स्मॉल हो सकते हैं. How small? Right? Now for this we should perform another activity that we should take again diagram. Okay, I will. उसके बाद ठीक है. Now let's start. We should take 100 ml of water again. सब में 100 भर दिया भाई, समझ लो भाई 100 है, ठीक है, सब में 100 भर दिया. Now what we should take? We should take a 2 or 3 crystal, just a crystal of potassium permanganate. So बच्चों potassium permanganate का फॉर्मूला है KMnO4, राइट. क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल कितने छोटे हैं आपको पता है, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट और शुगर पता है, बहुत छोटे होते हैं इतने से. अब 2-3 क्रिस्टल लिए. वी शुड टेक 2 or 3 crystals and dissolve in this water. ठीक है, 100 ml of water में 2 or 3 crystals of potassium permanganate. Now what we should do? We should take 10 ml, 90 ml, right? We should take 10 ml. 10 ml इसमें से लेके ये 10 ml इस 100 ml वाटर में फिर से ऐड कर दिया भाई. हाँ, ये लेके इधर डाल दिया. Then after that we should again take this 10 ml and put here. हाँ, we should again take here. Now we should keep diluting the solution 5 to 8 times. आप पोटेशियम परमैंगनेट के 2 or 3 क्रिस्टल छोड़ के इंक के भी ले सकते हैं, रेड इंक और ब्लू इंक. इज द वाटर स्टिल कलर? अगर इंक के रहेंगे तो एकदम डार्क होंगे इधर, और इधर तो लाइट 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 होते जाएंगे, राइट. This experiment shows that
just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. अगर हमने ये 100 ml का 5 बीकर भी लिया, सो 1000 ml, यानी कि 1 लीटर तक के पानी को हम ये कर सकते हैं. और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1000 लीटर तक के पानी को भी ऐसा कर सकते हैं, तब भी उसमें वो इंक का क्वांटिटी -000 पॉइंट कुछ आएगा, और इसका पोटेशियम परमैंगनेट का क्वांटिटी भी माइनस के नीचे आएगा. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. बच्चों, एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कम से कम हजारों, लाखों, अरबों, करोड़ों टाइनी पार्टिकल्स हो सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, we can visualize that how much smaller the particles of matter can be. So now let's continue. Let's continue. Now we will learn about characteristics of particles of matter. Characteristics. First, 3 कैरेक्टरिस्टिक है शायद. Let's continue. The first characteristics है, the particles of matter have spaces between them. ये जो हमने पहले सीख ली है. The particles of matter have spaces between them. Right? They have spaces between them. उनके बीचों में जगह रहती है, जैसे कि हमने सॉल्ट और शुगर का एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके जाना. अब जो अबाउट 2 एक्टिविटी हमने करा है, उसमें हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर में. राइट? सो इससे वो प्रूव हो जाता है. नाउ अब एक और चीज़ बताता हूँ. व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड मतलब नींबू पानी जो बोल सकते हैं, we can see that only one type of matter get into the spaces between particles. Right? अब वही 100 ml वाटर में अगर हम कॉफ़ी भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, दूध भी डालेंगे, तो भी उसका क्वांटिटी उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं. यानी कि ये हमें साबित करती है, दिस शोज अस दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. बहुत जगह रहती है. राइट? नाउ सेकेंड इज particles of matter are continuously moving. They are continuously moving. So now let's start our example. We should put unlit. अब क्या करना है, थोड़ा हिंदी में नहीं, ठीक है, I will try to understand yourself. हाँ, we should take a incense stick, means अगरबत्ती, अनलिट अगरबत्ती, वो क्लास के कॉर्नर में या घर के कॉर्नर में रख देना. अब if you, how close do you have to go near it so as to get its smell? आप उसके कितने पास जा सकते हो अगर वो जला है नहीं गया, और उसके पास जाके सूंघने में उसे आपको कितने दूरी से स्मेल आ सकता है. और अगर हम उसे लाइट करते हैं और फिर कॉर्नर में रखते हैं, तो आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से उसकी स्मेल मिल सकती है. यू विल गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस. नाउ दिस शोज दैट
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर वो जलाया जाता है तो भी आता है, पर कम आता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग इन एयर, दैट इज we can call that they possess kinetic energy. A particles of matter possess kinetic energy. Possess kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, आपने सीखा है mv², हाफ mv² बोलते हैं इसका, फिजिक्स में फॉर्मूला है। वो सब छोड़ देते हैं, अभी अभी केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। अब ये भी आप इससे विजुअलाइज कर सकते हैं कि एज द टेम्परेचर राइसेस, जैसे ही हमने उस इंसेंस स्टिक को जलाया, लाइट किया, मैटर मूव्स फास्टर, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। सो वी कैन ऑल्सो एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, एज टेम्परेचर राइजेस particles of matter moves faster, वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। बहुत फास्ट मूव करते हैं। We can also say that with increased temperature काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, सुगंध जल्दी मिलता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं, राइट। 5 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लो जरा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। इंसेंस स्टिक की जो एक्टिविटी थी उसमें हम ये भी एक अलग डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। हमने सिर्फ आग जलाई है, एयर से मिला, इंसेंस स्टिक सॉलिड था, राइट। दिस मीन्स वी कैन ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। अगर आपने नहीं जलाया तो भी वो एयर से मिलकर आपको उसकी सुगंध मिलेगी, राइट। वो इसलिए ऐसा करते हैं, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स को बस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे हमने स्पेसेस बिटवीन देम बोलते हैं ना, मैटर, एयर इज ऑल्सो मैटर, मैटर में स्पेसेस होते हैं। सो वो स्पेसेस ऑक्यूपाई करने के लिए मैटर इंटरमिक्स करती है दूसरे मैटर के साथ। So this intermixing of particles of two different types of matter on their own, this property is called diffusion. Diffusion बोलते हैं, diffusion, right? We can also observe that on heating, diffusion becomes faster. अगरबत्ती इंसेंस स्टिक को जलाया, राइट, जल्दी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, जल्दी से एयर के साथ मिला, जल्दी से हमें पहुंचा, यानी कि उसकी डिफ्यूजन फास्ट हो रही है। सो अगरबत्ती का जो सुगंध होता है, स्मेल होता है, वो एयर के साथ मिलता है, वो जलाते हैं जल्दी मिलता है, उस हिलने के प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेंगे बच्चों। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। अब ये तो हो गया, ये सेपरेट साइड। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। ये भी आता है एग्जाम में, पूछते हैं। डिफ्यूजन में लिख देता हूँ, या पढ़ सके थोड़ा। ये हो गया। अब थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? द थर्ड वन इज particles of matter attract to each other. Particles of matter attract to each other, right? इसका कुछ हो गया लगता है।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। हाँ, अब फिर से एक हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, मैं एक्सपेरिमेंट इतना क्यों बोलता हूँ पता है आपको? लग रहा है मैं एनसीईआरटी से कुछ उठा के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए डाल दिया, पर ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी क्या करती है बच्चों? हमें सोचने की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ाती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। मैं इसलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेता हूँ ताकि एग्जांपल से जितना ज़्यादा हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं ना, उतना ऐसे कभी नहीं समझ सकते। आपको ज़िंदगी बीत जाएगी पर आप कभी नहीं समझ सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे तो बहुत लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट स्टिल वी गो ऑन विद दिस। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, particles of matter attract to each other. Now what experiment given is, we should take some water in container, right? We should take some water in a container और try cutting the surface of water with your fingers. अब आप बोलोगे मैं पागल हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ? सर्फ वाटर तो लिक्विड है, उसका सरफेस को कैसे काट सकते हैं? वो नहीं, आप उस पर हाथ मारो। कराटे में मारते हैं ना तेज करने के लिए मुक्का, वैसे हाथ मारो उस पर, वो आप मारोगे। जैसे कैसे मीन्स, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप कराटे वाले को देखा, वो ब्रिक को हाथ से तोड़ते हैं, वो आधा आधा हो जाता है, राइट? यानी इससे हम समझ सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट लेस इन ब्रिक, मोर इन वाटर। वाई? बिकॉज हम उसे मार रहे हैं और मारने के बाद जैसे हाथ उठाते हैं वो फिर से जुड़ जाता है, राइट? मीन्स सो मच ऑफ फोर्स बिटवीन देम। H2O की बॉन्ड कितनी मजबूत है आप सोच सकते हो। अब एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इधर कि वी शुड टेक अ आयरन नेल। आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। वी शुड ट्राई टू कट देम और बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेच तो रबर बैंड को करेंगे, कट तो चॉक को करेंगे, हैमर को सिर्फ आयरन नेल को सिर्फ हैमरिंग कर सकते हैं। तो वो The above activity suggests that particles of matter have attraction between them. This force keeps the particle together. अब चॉक में उतना नहीं होता है, राइट? कार्बन से बनता है, एलम कार्बन ऐसे कार्बन से बनता है एक्चुअली, शायद से कार्बन का एलोट्रोप है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। चॉक, उसमें कार्बन की जो बाउंडेशन बाउंड जो फॉर्म होती है वो उतनी फोर्स से नहीं होती है, इसलिए हम उसे एक उंगली से भी तोड़ सकते हैं। रबर बैंड वो अगर स्ट्रेच करेंगे या फिर कट कर देंगे तो वो तेज एकदम हो सकता है, लेकिन आयरन नेल में इतनी अट्रैक्शन होती है कि वो अपने हाथों से तो नहीं टूट सकता, उसे हैमरिंग करना पड़े या कटिंग करना पड़े। This above activity suggests that particles of matter have attraction between them. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. देखा, अब चॉक दूसरी मैटर है, रबर बैंड दूसरी मैटर है, आयरन नेल दूसरा मैटर है। तो ये हम उससे वो हर दिस लिखा है ना, the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter, मीन्स अलग अलग मैटर के हिसाब से होती है, राइट? अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो हो गया यहाँ पर। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, प्लीज़ बच्चों एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेना। उससे क्या है, आप यहाँ एक बार पढ़ोगे और फिर वहाँ नहीं पढ़ोगे ना तो ये सब जीरो हो जाए। इसलिए रिविजन, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बिना तो कुछ नहीं होता भाई, कुछ याद ही नहीं होता है, और इससे ज़्यादा अंडरस्टैंड भी होता है, जल्दी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? We observe different types of matter around us, right? We can see that matter around us exists in 3 different types. ये तो आप बोलोगे कि मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, पर इसके पहले का अगर आप नहीं पढ़े ना, सचमुच बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में, बहुत। 3 स्टेट्स, इसके पहले का मैटर देखो,
मैं एक बात बता देता हूँ आप लोग को, कोई भी चीज़ ना जो पढ़ी जाती है ना, तो उसका बेसिक स्किल अच्छा होना चाहिए अगर समझने के लिए। अब आप मीन्स कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, आपको एडिशन वाला बेसिक ही नहीं पता है तो आप कैसे करोगे, देखा। और मैथ्स भी ना समझ के करनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर आई विल गोइंग टू टेल यू अबाउट रैशनल सिस्टम। नाउ दिस व्हाट इज सॉलिड, solid, liquid and gaseous, right? Now these states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. Particles of matter जो मैंने लिखे थे उन पे ये वेरी करता है। जो चेयर है वो सॉलिड है, वाटर इज लिक्विड, एयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दीज आर गैसेस, दिस वेरीज ऑन पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स। सो मैं इसके आगे का पढ़ाने वाला था पर आज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ कर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आगे जो एनसीईआरटी में दिया है, मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में पढ़ के आए, ताकि अब जब मैं समझाऊँ इसके नीचे वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, और आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट आपके ऊपर, अगर डाउट है तो पूछे, नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़े, एंजॉय करें। सो थैंक यू।